सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं और प्रैक्टिस करने वाले हैं एक पैसेज को। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर पैसेज। सो यहाँ पे जो हमारा पैसेज दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये हमें गेमिंग एंड ई स्पोर्ट्स के बारे में दिया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। The global online gaming and e-sport industry has reached a tipping point in popularity. With more than 1 billion PC gamers worldwide, the industry has evolved from a dash community connecting and playing at local LAN parties to filling out stadiums via competitive platforms such as Intel Extreme Master and ESL One, which are viewed by millions. In India, the industry has come full circle with PC gaming taking center stage yet again. With the world's largest youth population, Dash, a recent KPMG report predicts that online gaming revenue will touch 11,900 crores by 2023. It also states that the number of game developing firms in the country have increased tenfold from 25 in 2010 to 250 in 2018. Gamers today span all income levels and demographic. Female gamers are making their mark and enthusiasts are no longer limited to tier 1 cities. From a technological innovation point of view, this has translated into bulky muscle book and enthusiast towers, giving way to more compact multi-purpose next generation device. सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पैसेज। अब हम पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड गिवन इन द ऑप्शन शुड come at the place marked as A in above paragraph to make it grammatically correct and meaningful. Also, the word should fill in the blanks given in the two sentences given below. Make them contextually correct and meaningful. So first statement says that with so many cupcake stores open, it is hard to find a competitive dash in the market. After Vivian realized her dash was in culinary art, she dropped out of law school. सो स्टूडेंट्स, हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करना है? हमें इस क्वेश्चन में एक ऐसा वर्ड यूज़ करना है, एक ऐसा वर्ड फाइंड करना है जो कि हमारे पैराग्राफ के ए पार्ट में भी आ जाए और ये जो स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं इसमें भी वो सूट हो पाए। तो ऐसा इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में सिर्फ एक वर्ड है जो कि है नीश। नीश यहाँ पे नाउन फॉर्म भी हो सकता है, एडजेक्टिव फॉर्म भी हो सकता है। एडजेक्टिव फॉर्म कैसे कि वो रिलेट करेगा हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज के साथ और वो बात करता है स्पेशलाइजेशन सेक्टर की। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है जहाँ पे हम कपकेक स्टोर्स की बात कर रहे हैं, इट इज़ हार्ड टू फाइंड अ कॉम्पिटिटिव नीश इन द मार्केट, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टोर्स जो ओपन हुए हैं वो कपकेक्स के हुए हैं, राइट। सो यहाँ पर डिनोट करना या रिलेट करना प्रोडक्ट सर्विसेज से बहुत ही आसान हो रहा है और एक स्पेशलिटी आ रही है, एक स्पेशलाइजेशन आ रही है इस सेक्टर में। वहीं पे अगर हम विवियन के साथ रिलेट कर रहे हैं तो विवियन वाली स्टेटमेंट में जो है यहाँ पर हम एक कंफर्टेबल ऑप्शन की बात कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक सूटेबल पोजीशन की बात कर रहे हैं लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सो जो हमारा करेक्ट वर्ड है वो है यहाँ पे नीश्ड। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग phrases should fill in the blank, ऑप्शन बी, टू मेक इट कॉन्टेक्चुअली करेक्ट एंड मीनिंगफुल। तो हमारा जो ऑप्शन बी था वो है दिस पर्टिकुलर थिंग, नीश कम्युनिटी कनेक्टिंग प्लेयर्स and playing at local LAN parties to filling out stadiums via connective platforms such as Intel Extreme Masters and ELS One, which are viewed by millions. In India, the industry has come full circle with PC gaming taking center stage yet again, with the world's largest youth population dash. अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन क्या है? इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग gaming market globally. India is one of the fastest growing
gaming market global. India is one of the fast growing gaming market globally. India is one of the fastest growing gaming market globally. So स्टूडेंट, हमारा जो यहाँ पे सबसे परफेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट है, जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट है, वो है हमारा ऑप्शन डी, इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग गेमिंग मार्केट ग्लोबली. ओके, विद दैट लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. इन द पैसेज गिवन अ स्टेटमेंट ऑप्शन सी इज गिवन इन बोल्ड. हमने उसको हाईलाइट कर दिया, उसको डिफरेंट कलर में कर दिया गया. ओके, देयर मे और मे नॉट बी एन एरर इन वन part of sentence. Choose the part which has an error in it as your answer. If there is no error, then choose option no error as your answer. Sentence C जो हमारा है context में है वो है, it also says that number of game developing firms in the country have increased tenfold from 25 in 2010 to 250 in 2018. सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा, हमारा जो एरर पार्ट है वो किस में है, कंट्री हैव इंक्रीज 10 फोल्ड. यहाँ पे जो हमारा वर्ड है हैव, इसको हम रिप्लेस करेंगे हैज़ से, ताकि हम हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट है उसको मेंटेन कर पाएँ. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारा जो कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं. इट ऑल्सो स्टेट्स द नंबर ऑफ गेम डेवलपिंग फर्म्स. ठीक है, गेम डेवलपिंग फर्म जो कंट्री में है वो इंक्रीज़ हो गई हैं. ठीक है, तो इंक्रीज़ जो हुई हैं वो फर्म्स हुई हैं, राइट. सो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन सी, कंट्री हैव इंक्रीज 10 फोल्ड. हैव की जगह यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़, ताकि हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो सही हो पाए. ठीक है, विद दैट लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. द सेंटेंस गिवन इन डी option have 4 words given in bold. Amongst the given bold word, one of the following may or may not be wrongly spelled. Choose the incorrectly spelled word as your answer. तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से पता है, अगर आपने स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ा हुआ है यहाँ पे, तो आप पहले ही डिनोट कर पाओगे कि डेमोग्राफी यहाँ पे एक गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो हमारी स्पेलिंग होती है वो होती है DEMOGRAPHIC, डबल ए नहीं होएगा यहाँ पे. ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, जो हमारा एरर है वो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए. Let's move to question number 5. The sentence given in option E has 4 words given in bold. Among the bold given word, which of the following words should be replace each other to make the sentence correct contextually and meaningfully? सो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या है, इन्वॉल्व, कॉम्पैक्ट, बल्क या कॉम्पैक्ट जनरेशन, या बल्कि या इनोवेशन जनरेशन. क्या, नो चेंजेस रिक्वायर्ड. लेट्स गो टू ऑप्शन ई, सॉरी, ऑप्शन ई में हमारे पास ये हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, इनोवेशन, बल्कि एंड क्या है फिर हमारे पास, जनरेशन एंड compact. From a technology innovation point of view, this has translated into bulk muscle books and enthusiast tours, giving way to more compact multi-purpose next generation device. Students, ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है ये परफेक्ट है, करेक्ट है, इसलिए हमें यहाँ पे कोई भी चेंजेस रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम हमारा ऑप्शन ई मार्क कर देंगे इज अ करेक्ट ऑप्शन, नो changes required. With that, we'll end the class for today and we'll meet you in the next class.